आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 32 में। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमारी फाइट हुई थी, हमारे जनरल्स और हमारा बादशाह अल नसर एक ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहां पे रिट्रीट पॉसिबल नहीं है। तो अब आगे हम नरेशन से स्टार्ट करते हैं। Night had fully claimed the plains by the time the second phase of the battle began. The first clash has already stripped the land of order. Fires burned without pattern, torches lay abandoned in the dirt, and the wind carried neither command nor courage anymore, only breath broken and sharp. The Victory Kingdom's army was still standing, but no longer united. अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि रात पूरी हो गई है प्लेन्स में, विक्ट्री किंगडम में, और इनका जो पहला क्लैश था अजब्स के साथ, अल नसास और अल गुल के साथ, वो इनका जितना भी ऑर्डर, जितना भी इनका डिसिप्लिन था वो ख़त्म हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विक्ट्री किंगडम है वो अभी भी खड़ा हुआ है, मगर वो यूनाइटेड, वो साथ में नहीं है। Formations that had held through the opening assault were not fractured into knots of men. Each fight its own war in dark. The enemy was no longer ahead of them, it was among them. The work of Al-Nasas, the soldiers did not understand at first why the lands were being involved. अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो फॉर्मेशन था विक्ट्री किंगडम का, जो वो साथ में हिल्ड कर रहे थे, वो टूट गया है। ये किसका काम था? ये काम था अल नसास का। और यहाँ पे हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है अंधेरे में। सोल्जर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो अल नसास का जो एक काम है और ये जो इनकी लाइन है वो अंदर की तरफ क्यों बेंड हो रही है। Men swore they had seen shadows moving too fast for a body to follow. Low shapes darting between legs, vanishing beneath shield, reappearing behind the ranks. Cries erupted, not of attack but of confusion. Then the screaming started. Al-Nasas did not charge. वही जैसे कि पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये स्लिप होकर जा रहे थे, जॉइंट्स पर अटैक कर रहे थे, एंकल्स, थाइस पर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर वही कर रहे हैं कि ये सब देखने के बाद यहाँ पे अगर चिल्लाना, कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग और स्टार्ट हो गए यहाँ पे, और अल नसास चार्ज नहीं करा। They entered in uneven forms, slide through gaps no man believed existed, half bodies dragging themselves forward with warped limbs, torsos twisted in ways that mock bone and muscle. They struck from below, pulling soldiers down by ankles, cutting hamstrings, tearing throats upward from ground. Men fall without ever seeing what killed them. Once a soldier was isolated, three more Al-Nasas followed, overwhelming him with speed and numbers. Then vanishing again before help arrived, the battlefield became a place where standing alone meant dying silent. अब यहाँ पे अल-नसास की हमें अल-नसास के बारे में बताया जा रहा है। वो एकदम आए अनइवन फॉर्म्स के साथ, और उनकी अनइवन फॉर्म्स के साथ वो एकदम आए, और उनके टॉर्सोस, उनके लिम्स एक ऐसा, एक बड़ा एक छोटा, और उनके टॉर्सोस एकदम ट्विस्टेड और टर्न्स, और वो आते थे, सोल्जर्स को अटैक करते थे, वैनिश हो जाते थे। वो नीचे से अटैक करते थे, सोल्जर्स को मालूम भी नहीं होता था कि उनको क्या मार रहा है। अब यहाँ पे एक सोल्जर का हमें वाक़या बताया जा रहा है कि एक सोल्जर आइसोलेटेड हो गया पूरे बैटलफील्ड से, वो लड़ रहा था समझो। फिर उसके पीछे तीन अल नसास गए और उसको ओवरमार्म कर दिए स्पीड के साथ और उनकी स्ट्रेंथ के साथ। फिर उसके बाद वो वैनिश हो गए उसको मार कर। फिर जब उसको मदद करने लोग आए, वो मदद नहीं कर पाए। डेथ ऑफ द फर्स्ट जनरल यहाँ पे टाइटल दिया गया है। The first general tried to restore order. He shouted until his voice tore. He formed a square with what remained of his men, shield outward, spears down. For a brief moment, discipline returned. That moment ended up when the ground beneath them moved. Al-Nasas rose inside the formation, bursting upward from the between roots and the fallen bodies.
The general turned just in time to see one of the creatures launch itself at his chest, not upright, but sideways, spinning its limb, failing with unnatural force. The impact knocked him down. Before he could rise, two more were on them. They did not kill him quickly. One severed his sword arm. अब यहाँ पे हमें फर्स्ट जनरल के बारे में बताया जा रहा है. फर्स्ट जनरल ट्राई करा रिस्टोर ऑर्डर करने की, अपना फॉर्मेशन बताने की. वो इतना चिल्लाया कि उसकी आवाज़ फट गई चिल्ला चिल्ला कर. फिर उसके बाद वो एक स्क्वायर बना लिया. जितने भी उसके मैन्स, अभी उसके पास जितने भी लोग उसके पास मौजूद थे, उससे वो एक स्क्वायर बना लिया और अपना रेडी हो गया. फिर अलनसास ने की उसके फॉर्मेशन के अंदर से निकले उसको अटैक करने के लिए. फिर उसको अटैक करे. एक अलनसास उसको अटैक करने आया उसके चेस्ट के तरफ. उसको समझ में नहीं आया. वो समझ रहा था कि वो उसको लेग की तरफ से अटैक करेगा, मगर वो चेस्ट की तरफ से अटैक किया. फिर उसके बाद जब वो अटैक करने गया जनरल, तो वो अजीब तरीके से ट्विस्ट और टर्न होकर वो उसको अटैक किया और वो उसको गिरा दिया. फिर वो देखकर और 2-3 नसास आए, उसके ऊपर गिरे. वो उसको जल्दी मारना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसका जो स्वॉर्ड का आर्म था उसको अलग कर दिया. Another crushed his throat with crooked limb. The third tore up his abdomen. The third tore up his abdomen and held up there, letting the man around watch as he bled out. Choking on his own breath, when his guard tried to reach him, the creatures were already gone. Only the body remained broken, open, unrecognizable. The first general died without ever landing a second strike. कितने क्रूअल और क्रुकेड है ये अलनसास. अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि दूसरे जितने भी ये 2-3 आए थे ना, वो क्या करे, उसके थ्रोट पे नहीं की, अपने क्रुकेड लिम्ब से अटैक करे. फिर उसके बाद तीसरा नहीं कि उसकी एब्डोमिन फाड़ दिया, उसका पेट फाड़ दिया और उसके जितने भी अंदर के हैं वो ऐसा ऊपर उठाकर रखा, ये दिखाने के लिए कि उसके गार्ड्स को वो देख ले कि इसको क्या हुआ है. अब ये सब देखकर जितने भी उसके अराउंड गार्ड्स थे वो उसको रीच होने के लिए आगे बढ़े, जब तक जितने भी अलनसास थे वो गायब हो गए. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट जनरल की मौत हो गई. वो मर गया बिना किसी सेकंड स्ट्राइक मारने से पहले. वो जंग में आने से पहले ही वो मर गया और उसकी बॉडी रिमेन थी, उसकी बॉडी बची हुई थी. उसकी बॉडी ऐसी थी, पूरी खुली थी, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा था, वैसा वो हो गया. The ghoul revealed itself where Al-Nasas thrive on confusion. The ghoul thrive on hope. It appeared as a wounded soldier staggering toward the rear lands. Men rushed to help, lifting it, supporting its weight. That was when it changed. Its spine bent backward, its jaw split wider than a human skull allowed. Its hands became claws mid-movement. The ghoul killed 3 men before anyone understood what they were seeing. It fed immediately, tearing flesh, biting deep, dragging bodies away from torchlight. इनका जो पल्ला पड़ा है ना अलगूल से, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलगूल अपने आप को रिवील करता है. जहाँ पे अलनसास कन्फ्यूजन पे चलता है, अलगूल जो है वो होप पे टिका हुआ है. जो लोगों की होप है ना, उस पर वो अटैक कर रहा है. ये अलगूल एक डिसेप्शन वाला जानवर है. तो ये आता है एक वुंडेड सोल्जर की तरह ये आता है. फिर उसके बाद उसको जो लोग मदद करने जाते हैं उसको उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं और मिड मूवमेंट में ले जाने से पहले वो अपने आप को रिवील करता है. उन 3 आदमियों को मार कर वो गायब हो जाता है. More ghoul followed. They mimic voices, cries for help and familiar commands. Entire squad broke formation, chasing sounds that led them into darkness and never returned. Death of the 4th general. यहाँ पे और गूल ऐसे ही टेक्निक फॉलो करते हैं, वो मिमिक करते हैं वॉइसेस. फिर बाद में जो भी उनको बचाने जाता है वो
डार्कनेस में चले जाता है, वो फिर कभी वापस आता ही नहीं। अब यहाँ पे और एक टाइटल है, इस टाइटल है द डेथ ऑफ द फोर्थ जनरल। The fourth general was still fighting when the ghoul reached him. He was a veteran, armed, sacred, still standing when the most around him had fallen. He cut one ghoul down cleanly, then another, splitting skull and spine with precise strike. But the ghoul did not fight alone. One frightening threat the general pressured. The moment he stepped beyond the torchlight, four more emerged from the dark. They did not attack him from the front. They circled. He killed two before they reached him. The third locked on his leg, dragging him down. The fourth bit on his shoulder and did not release. अब यहाँ पे फोर्थ जनरल की सिचुएशन बताई जा रही है। फोर्थ जनरल एक वेटरन था, वो आर्मर पहनकर पूरा तैयार था, वो लड़ रहा था। उसके अराउंड जितने भी लोग थे वो फॉलन, मतलब वो गिर गए थे या मर गए थे। फिर वो गूल्स थे, इसके बारे में गूल्स थे इसके पास, वो उनको कट करता जा रहा था। तो कट करते करते क्या हुआ, एक गूल आया, वो अकेला फाइट नहीं कर रहा था। जो गूल था वो एक अजीब सा थ्रेड बनकर आया, जिससे जनरल को प्रेशर महसूस हुआ। अब ऐसा मूवमेंट आया उसके फाइट के बीच में, जिससे वो रोशनी, जितनी भी रोशनी अराउंड थी टॉर्चेस की, वो उससे बियॉन्ड कदम रखता है। तो चार गूल निकलते हैं अटैक करने के लिए। वो अटैक उसको आगे से नहीं करते, वो उसको सर्कल कर कर अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर ये दोनों को काट देता है उसको रीच करने से पहले। बाकी के जो है वो उसके पास रीच हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा था, चार आए थे ना, तो दोनों को मार दिया, तो तीसरा उसके पाँव पे लॉक हो जाता है। फिर चौथा उसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है और उसको छोड़ता नहीं है। The general screamed not in fear but in rage as they tore his armor open piece by piece. When the ghoul finished feeding, nothing remained intact. His body was found at dawn, scattered across several पैक ऑफ ग्राउंड। इसके बाद हमें पता जा रहा है जनरल चिल्लाता है, डर में नहीं गुस्से में चिल्लाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा ये गूल जो लॉक हो गए थे वो उसके आर्मर को हल्लू हल्लू कर कर बाय पीस खोलते हैं। फिर उसके बाद गूल उसको ख़त्म कर देते हैं। उसकी जो बॉडी है वो इंटैक्ट नहीं मिलती। जब उसकी बॉडी मिलती है सुबह के टाइम पे, वो पूरे प्लेसेस पे उसकी बॉडी पूरी बिखरी पड़ी है, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। The victory kingdom has not been defeated, but it has been broken, and the night was not over yet. अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा, हमें खबर मिल रही है नरेटर की तरफ से कि पहला जनरल और चौथे जनरल की मौत हो गई है और बहुत सौ सोल्जर्स मिसिंग है, और जो विक्ट्री किंगडम है वो अभी हारा नहीं है, मगर वो टूट गया है और रात अभी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 32 कंप्लीट होता है। मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।